Welcome to the Bogus Dog channel, and this video is all about for NEET PG, someone who is aiming NEET PG 2025 or further. One. So we will discuss about the important things to focus while preparation of doing NEET PG, materials you needed, choosing a app, and 20th notebook, what to include or what to not. Okay, so first, if you are a repeater, go for a trip. If you are not a repeater, it's all depends on you. Some just for me, it was like me ki just before exam I go for a trip or I usually enjoy a lot. But during the preparation, I do not attend any function or anything else. Just focus all on study. So it's all your personal matter what you prefer. Last time a repeater told a topper told that he watched 2-3 hours of daily episode of any serial and follow that and then start study by that only. So it's all depends on you. You want to enjoy daily or you want to enjoy in the starting session of your preparation. Okay. So first thing first, only 20th notebook is important, or you have to make some other notebook also. So first let me explain about 20th notebook. Okay. So people ask what to mention in the 20th notebook and what to not. For this, make example. Just imagine तुम्हारे सामने एक यंग सिंड्रोम आया एंड सेकंड एग्जांपल इस कार्टाजिनस सिंड्रोम दिया हुआ है तुम्हारी बुक के अंदर, ठीक है। फॉर दिस यू पीपल व्हाट टू पीपल डू कि वो क्या करते हैं कि दोनों के दोनों सिंड्रोम क्या करते हैं 20th नोटबुक में डालते हैं। दे पुट बोथ सिंड्रोम इन 20th नोटबुक। अब यंग सिंड्रोम इफ रियली दिस इज मेकिंग यू कंफ्यूज 20th यंग सिंड्रोम एंड कार्टाजिनर सिंड्रोम के तीनों जो ट्रायड है तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं, देन यू कैन पुट इन 20th नोटबुक। बट यूजुअली ऐसा होता है कि ये दोनों के जो ट्रायड है वो कंफ्यूज नहीं करते हैं। फॉर मी टेक मी एज एग्जांपल, ये दोनों ट्रायड मुझे कंफ्यूज नहीं करते हैं। यंग यंग में इस इनफर्टिलिटी एक फैक्टर आएगा क्योंकि यंग है, यंग के अंदर इनफर्टिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, ये मुझे पता है। यहाँ पे तो ये साइनोसाइटिस ब्रोंकाइटिस रहेगा। व्हाट मेक मी कंफ्यूज कि इनफर्टिलिटी का कॉज दोनों के अंदर क्या है। यंग सिंड्रोम के अंदर इनफर्टिलिटी का कॉज क्या है, वॉइस डिफरेंस का ऑब्स्ट्रक्शन, और कार्टाजिनर के अंदर इनफर्टिलिटी का कॉज क्या है, इमोटाइल स्पर्मेटोजोआ या एजोस्पर्मिया। ओके, फॉर दिस व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूँ, जो 20th नोटबुक है मेरी उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डालता हूँ ओनली। यंग फर्टिलिटी, ऊपर हेडिंग डालूंगा कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, यंग सिंड्रोम के अंदर वास्ट डिफरेंस ऑब्स्ट्रक्शन, कार्टाजिनर के अंदर इनफर्टिलिटी ड्यू टू इमोटाइल स्पर्मेटोजोआ। what people tend to do, they put all the things in 20th नोटबुक। वो यंग सिंड्रोम भी डाल रहे हैं, कार्टाजिनर भी डाल रहे हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी डाल रहे हैं, ब्रोंकिएक्टिसिस भी डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं 20th नोटबुक में, जो कि है ही नहीं। यदि आप ऐसे 20th नोटबुक बनाएंगे, इफ यू मेक 20th नोटबुक लाइक दिस, it will go up to 500 pages. 20th notebook should be around 100 pages, 120 pages only, so you can remember in last 2 days or last 1 days. Okay, फिनिश। तो मतलब इफ इन शॉर्ट व्हाट आई कैन से 20 नोट के अंदर क्या क्या मेंशन कर रहा है, टॉपिक्स यू टेंड टू फॉरगेट वेरी इजीली। जस्ट लाइक द टॉपिक आई टेंड टू फॉरगेट वेरी इजीली, जैसे एबीजी का जो होता है ना, जस्ट जैसे व्हेन वी डू एबीजी, तो एबीजी में कंपनसेशन देखते हैं हम। द टॉपिक आई फॉरगेट वेरी इजीली कि कंपनसेशन के अंदर 4 कहाँ पे लेना है, 1 कहाँ पे लेना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, दिस इज द टॉपिक आई टेंड टू फॉरगेट वेरी इजीली। इट इज सुपर इंपॉर्टेंट, सो 1 and 5 both are filled with this condition. Topics that you compiled. Just imagine you read anemia and you compiled it. Just imagine I will tell one example for you ki how can you put compile things in your 20th notebook. For me, just if you see my OBGY note, just like this. If you see the OBGY abnormal labor topic, I compile all three stages. First stage hair, second stage hair, and third stage is very first stage, second is here, and I put it all the point here, that what is the normal dilatation, what is the descent of, what is the descent normally, what is abnormal descent, all the thing in one chart. Okay, this is this is known as compilation. Up in compilation, this is important. Usually क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम हेयर, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला हुआ है, किसमें, मेरी 20th नोटबुक के अंदर, ठीक है। तो दिस इज द वन एग्जांपल, टॉपिक्स यू कंपाइल, सिली मिस्टेक यू डू इन योर जीटीज। Always put in your 20th notebook silly that you what mistake you did in your 20th notebook in your GTs, that is very easy. Okay,
एंड टॉपिक्स दैट मेड यू कंफ्यूज। जैसे मेरे को सबसे ज्यादा टॉपिक कौन सा कंफ्यूज करता है, जो मैंने यहाँ पे डाल रखा है दी एग्जांपल देखो आप मेरी 20 नोटबुक के अंदर जो मैंने बनाई थी मेरे प्रिपरेशन के टाइम पर। मुझे फिजियोलॉजी के अंदर मुझे कंफ्यूज करता था सबसे ज्यादा कि कौन से पाथवे का कौन सा वो काम में आ रहा है, मतलब कौन सा पाथवे किस काम में आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे बना भी रखा है किसी न किसी के अंदर। जैसे मुझे कंफ्यूज करता था ये वाला पाथवे कि न्यूरल सेंट्रल ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर पहले न्यूमोटैक्सिक आता है या पहले एपनियोस्टिक आता है, विच कम्स फर्स्ट, न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपनियोस्टिक सेंटर, फॉर विच आई मेड निमोनिक्स एंड पुट इट हेयर ऑल्सो। दिस इज द थिंग आई पुट मेक माई सेल्फ। तो ये चीजें हैं जो तो आपको 20th नोटबुक में पुट करनी है, ठीक है। जो मुझे चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, जैसे आरएमपी ऑफ स्केलेटल मसल, कार्डिक वेंट्रिकल, आरएमपी ऑफ न्यूरॉन, ये जो डायरेक्ट रटने वाले क्वेश्चन है जिनको जेनी बोरा मैम बुरी तरह रटो वाले टॉपिक में डालती है, वो जो मुझे टॉपिक लगते हैं वो मैंने यहाँ डाल रखे हैं ऐसे। तो ये all these five things you can put in your 20th notebook. Okay, topics you tend to forget very easily, topics you compile, your silly mistakes, topics that make you confused, and topics which are super important and you easily tend to forget it. Okay, next, which other important copy do you need? Okay, mnemonic copy, that is super duper important. What people usually do, they put a sticky notes on wall and forget the mnemonic, and at the last time when they go to exam, they uh, just remember the sticky notes on wall and forget just before the exam. So for this easiness एक separate mnemonic copy बनाइए। यदि आप sticky notes wall पे चिपका रहे हैं, if you stick your notes in wall, इसके बावजूद भी इसके बाद भी आपको वो सारा का सारा शॉर्ट कॉपी के अंदर मेंशन करना है, निमोनिक वाली कॉपी में मेंशन करना है। जो निमोनिक आप बोलते हुए कर रहे हैं, जो निमोनिक आप खुद बना रहे हैं, याद रखिए वो निमोनिक उस प्लेस पे भी होना चाहिए जहाँ पे आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। जैसे जस्ट इमेजिन मैंने यहाँ पे एक निमोनिक बनाया था पहले आप वाला, ये निमोनिक मेरी मेन कॉपी के अंदर भी है, ये जो निमोनिक है ये मेरी मेन कॉपी के अंदर भी है, ये मेरे शॉर्ट नोट्स के अंदर भी है, और ये मेरे 20th नोटबुक के अंदर भी है। यू विल से कि तीन तीन टाइम लिखने से क्या फायदा है, पहली बात तो रिवीजन ईजी होगा निमोनिक लॉन्गर टाइम के लिए, मेमोरेबल रहेगा। ऐसे नहीं आपने निमोनिक में बना लिया है आपको निमोनिक की याद नहीं है कि निमोनिक बनाया क्यों था। ओके, पहली थिंग है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट थिंग है, जो कई चीज मतलब नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई लेक्चर्स या कई मैम्स कई सर के नॉर्मली जो क्लासेस होती है उनमें क्या करते हैं, वो जब पढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं, ऐसे याद रख लेना, पी फॉर पढ़नी, पी फॉर प्रेशर। जो 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 लेटर लेटर वाले कनेक्शन के निमोनिक होते हैं, प्लीज प्लीज अवॉइड इट, इनको अवॉइड करना है। यूजुअली वो निमोनिक बनाने हैं कौन से, जो कि आप खुद बना रहे हैं या फॉलो द बेस्ट वन, कोई दूसरे का बेस्ट निमोनिक है वो आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कई निमोनिक, जैसे पहले आप ये मेरा बनाया हुआ है, दूसरे के निमोनिक होते हैं जो आपको कई बार बेस्ट लगते हैं, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री के निमोनिक यूजुअली हार्ड होते हैं, वो दूसरे के बनाए हुए होते हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री का निमोनिक जो दूसरे ने बनाया हुआ है जो फेमस है, जो मैंने यूज में लिया हुआ है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कहीं डाला हुआ है, जैसे ये वाला निमोनिक है जो दूसरे का बनाया हुआ है, ये वाला वियाग्रा पिल कैन अग्यूमेंट मेल हैप्पीनेस टुनाइट, ये निमोनिक है, आप दूसरे का यूज में लेंगे, ऑब्वियसली इतना हार्ड निमोनिक है जो कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज को शो कर रहा है। ओके, तो इस प्रकार से आपको 20 नोटबुक को फिल करना है ना। निमोनिक वाली बुक को ऐसे ही फिल करना है। मैंने निमोनिक बुक सेपरेट नहीं बनाई थी, मैंने निमोनिक बुक अपने 20 नोटबुक के लास्ट के 10 या 15 पेज बनाए थे, लेकिन लास्ट में जब मुझे पता लगा कि दिस इज समथिंग शॉर्ट ऑफ शॉर्ट, तो मैंने लास्ट में छोटी डायरी बनाई थी, उसके अंदर अपने सारे निमोनिक लिखे हुए थे, जो भी मैं लिखता था। यूजुअली क्या होता है, जो लास्ट के 25 या 30 डेज होते हैं, जब आप फास्ट रिवीजन करते हैं या आप सेकंड या थर्ड रिवीजन करते हैं, तो नो यूजुअली ऐसा होता है आपको निमोनिक बहुत जल्दी बनते हैं, तो उस टाइम पे निमोनिक कॉपी काम में आती है, आपको निमोनिक वहां पे लिखने होते हैं, दैट्स वाई। ओके, सो ट्राई कि अपने खुद के निमोनिक बनाने हैं और फॉलो करना है जो बेस्ट वन है। और पीवाईक्यू, व्हाट टू डू व्हाइल सॉल्विंग पीवाईक्यू, अपनी बुक के अंदर स्टार मार्क या हैशटैग का मार्क, जो भी आप हैशटैग का मार्क लगाएं, वो अपनी मेन कॉपी के अंदर जहाँ से नोट्स पढ़ रहे हैं या 20th नोटबुक के अंदर उसके ऊपर पीवाईक्यू जरूर लिखना है। इससे ये रहेगा जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम, क्या पता आपको टाइम मिले नहीं मिले कस्टम मॉड्यूल से पीवाईक्यू सॉल्व करने का, लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आप पीवाईक्यू को एकदम से आपकी नजरों के ऊपर से वो टॉपिक जरूर जाएगा आपकी आंखों के नीचे से, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सर जो कार्टाजिनस सिंड्रोम और जो सिंड्रोम है जो ट्रायड है वो कैसे यूज में ले।
तो देखिए ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी किस में जाएगी, एक सेपरेट छोटी कॉपी बनाइए आप। जैसे जेनी वोरा मैम खुद बनवाती है एक छोटी कॉपी, वैसे एक अपनी खुद की सेपरेट कॉपी बना सकते हैं आप एवरी सब्जेक्ट। उसके अंदर आप अलग से ट्रायड लिख सकते हैं, सारे के सारे डायग्नोसिस एक साथ लिख सकते हैं। जैसे ऑर्थो के सारे जो फ्रैक्चर वो एक साथ है। वैसे ऑर्थो के नॉर्मली नेम्ड फ्रैक्चर तो किस में जाते हैं, आपकी 20th नोटबुक में। क्यों? क्योंकि वो सीधा रटने वाली चीज़ है, बुरी तरह रटो वाली। लेकिन आपको ज़्यादा ही कुछ लॉन्ग इनफ करना है, कुछ ज़्यादा ही मतलब शॉर्ट में करना है, जैसे मेडिसिन का कोई टॉपिक उसको मोर शॉर्ट करके लिखना है, तो प्रीफर की छोटी कॉपी के अंदर आप लिख लीजिए ऐसी चीज़ों को, इंस्टेड ऑफ यूजिंग 20th नोटबुक। नहीं तो 20th नोटबुक पाइल्ड अप हो जाएगी। तो थ्री थिंग्स यू हैव: 20th नोटबुक टू रिवाइज एट टाइम, एक छोटी कॉपी जो आप एवरी सब्जेक्ट फिनिश होने के बाद में पढ़ेंगे, और एक निमोनिक की शॉर्ट बुक। जैसे मैंने फिजियोलॉजी के 70 फ्लैश कार्ड यूज़ किए थे अभी, बनाए थे, वो मेरी छोटी कॉपी एक तरीके से आप ऐसे मान सकते हैं, और निमोनिक की एक शॉर्ट बुक। ठीक है। सेकंड, जो अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग वो, चूज ए टीचर ऑन ऐप बिफोर स्टार्टिंग द स्टडी। स्टडी स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि आप कौन से ऐप से किस टीचर को यूज में ले रहे हैं, या सिंगल आप किस ऐप से किस किस टीचर को प्रेफर कर रहे हैं। प्लीज प्लीज डोंट कंफ्यूज कि मैंने अश्विनी सर को उठा लिया है, मैं डेम्स के लिए सर का लेक्चर देख लेता हूँ, अब मैं मैरो के सर का लेक्चर देख लेता हूँ, अब मैं किसी और सर के लेक्चर देख लेता हूँ वो कैसा पढ़ाते हैं। चूज आस्क योर फ्रॉम योर सीनियर, या आस्क फ्रॉम माई ग्रुप, इन माई ग्रुप की कौन सा टीचर बेस्ट है सर, कौन सा क्या है। तो ऑलवेज फॉलो डेट, उसका चैनल या उसका ग्रुप फॉलो कीजिए, बाकी कुछ अटेंड नहीं करना है, कुछ भी नहीं। सो वॉट, मतलब ये किस में हेल्प करेगा, ये एंड के प्रिपरेशन में आपकी बहुत हेल्प करेगा। एंड के प्रिपरेशन में पीपल टेंड टू डू कंफ्यूज कि यार मैंने है ना कि फर्स्ट टॉपिक तो मैंने वहां से पढ़ा था, अपर लिम्ब मैंने अश्विनी सर का पढ़ा हुआ है, लोअर लिम्ब मैंने मैरो से पढ़ा हुआ है, और जो चेस्ट है मैंने सेरिबेलम से पढ़ा हुआ है। सो ऑलवेज फोकस ऑन, जो बिलीव ऑन योर टीचर, कि जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं फर्स्ट। यदि आप एक ऐप को प्रेफर कर रहे हैं दैट इज बेस्ट, जिसके नोट्स बहुत अच्छे हैं, जैसे प्रेपलेटर को फॉलो कर रहे हैं या मैरो को फॉलो कर रहे हैं, जो भी आप ऐप फॉलो कर रहे हैं, प्रेपलेटर ऐप, स्पीड, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसके टीचर को फॉलो कीजिए। नोट्स उसके नोट्स के अंदर ही मेंशन करना है, और वो भी बहुत क्लियरली मेंशन करना है। मेरी ये मिस्टेक रहती थी कि मैं क्लियरली मेंशन नहीं करता था, फिर मुझे वापस अलग से बुक में लिखना पड़ता था। ठीक है। सो चूज ए सिंगल सोर्स टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। वन ऑफ माय फ्रेंड वो ये करता था, वो क्या करता था यूजुअली कि एक टॉपिक एक सब्जेक्ट से पढ़ा, दूसरा टॉपिक दूसरे टीचर से पढ़ा, दूसरा टॉपिक दूसरा टीचर से पढ़ा, तीसरा टॉपिक। तो ऑलवेज चूज ए सिंगल सोर्स टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन इन द एंड, एंड इट विल ईज योर रिवीजन। रिवीजन के टाइम पे बहुत इजीली हो जाएगा यदि आप एक ही सिंगल सोर्स से पढ़ रहे हैं, और यदि आपका सब कुछ कंपाइलेशन पहले से ही है। इट विल लीड योर एफर्ट्स इन स्टार्टिंग फेज ऑफ प्रिपरेशन, बट एट द एंड इट रियली हेल्प्स यू टू डू रिवीजन। ओके। व्हाट इफ रीडिंग बीटीआर। देखो बीटीआर पढ़ रहे हैं आप यदि जेनिफोरा मैम का, तो बहुत इजी है। मतलब इफ यू आर ओनली फॉलोइंग बीटीआर, तो पीपल की सर बीटीआर कब पढ़े, मतलब इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पढ़े, या टॉप मतलब सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले पढ़े एंड में। तो फॉर मी यू कैन से कि पहले आप सब्जेक्ट पढ़िए, उसके कंसेप्ट समझिए, फिर आप बीटीआर की तरफ जाइए। बात पहले बीटीआर में जाना, या फिर सेकंड है कि सर मेरे को है ना ऑफ्था समझ में नहीं आती, ऑफ्था आई हेट ऑफ्था, तो व्हाट कैन आई डू। तो बेटर ये है कि आप 17 या 18 सब्जेक्ट को पढ़िए अपने मेन से, और उस बीटीआर को देख लीजिए जो ऑफ्था का नहीं आता है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। इंस्टेड ऑफ लिविंग होल सब्जेक्ट बीटीआर पे फोकस कीजिए, बाकी सब्जेक्ट का बीटीआर देखिए, लेकिन ऑफ्था का बीटीआर आपका सोल है, मतलब उस टाइम पे, क्योंकि आप ऑफ्था पढ़ के नहीं जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट डिवाइड एंड रूल। इफ यू आर ए न्यू कैंडिडेट रिवाइजिंग, मतलब रीडिंग फर्स्ट टाइम, एमिंग फॉर नीट पीजी प्रिपरेशन 2025 फर्स्ट टाइम, 80% आपको न्यू पढ़ना है और 20% रिवाइज करना है ओल्ड को, शुरू के जो 5 और 6 मंथ है जब आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सब हु समवन हु इज रिपीटर, उसको क्या करना है, 80% रिवाइज करना है। ऑब्वियसली वो पढ़ रहा है, वो भी रिवाइज कर रहे हैं, एंड 20% रिवाइज करना है हार्ड टॉपिक्स को। और जो 20% यहाँ पे पार्ट है, ये 20% पार्ट है, ये जो 10% पार्ट है इसका जाएगा PYQ या फिर कस्टम मॉड्यूल के ऊपर। कस्टम मॉड्यूल के अंदर स्टार्ट कर सकता है वो, कस्टम क्वेश्चन के स्टार्ट करता है 20 क्वेश्चन पर डे से लेकर के 100 क्वेश्चन पर डे तक की वो स्टार्ट कर सकता है। ये ऑल डिपेंड है उसके ऊपर। तो दिखा हुआ है कि जो 10% टाइम है रिपीटर का, वो क्या होना चाहिए, रिवाइज बाई क्वेश्चन सिस्टम, PYQ से, या कस्टम मॉड्यूल बना के 10 20 से लेकर 100 क्वेश्चन का, जो उसके पास टाइम है उसके हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट है कि चार्ट कैसे बनाएं पढ़ने का। 17 जस्ट फॉर मी, आई डिवाइड फर्स्ट, यूजुअली डिवाइडिंग ए 7 days इज रियली इजी, बट मेरे हिसाब से आपको 30 days रिवाइज करना है व्हेन यू स्टार्ट टू प्रिपेयर।
चेंज, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू प्लान। जैसे मान लो एक दिन की छुट्टी पड़ गई तो ये अपने आप ऐसे, इसमें क्या है, एक प्लस या -2 days रखना है ऐसे, जिससे आप इजीली देखो। फॉर मी माइक्रो इज वेरी बिग इन मैरो, फार्मा इज वेरी बिग इन मैरो, सो आई टेंड टू डू यूजुअली कि 2 चैप्टर माइक्रो के करने हैं सुबह या शाम को, एंड 2 फार्मा के चैप्टर करने हैं सुबह या शाम को। जो मेरे साथ पढ़ते, मेरी फ्रेंड पढ़ती थी मेरे साथ में जो भी था, तो उसको पता है वी यूजुअली टेंड टू रिवाइज 2 चैप्टर डेली फ्रॉम माइक्रो एंड 2 चैप्टर फार्मा फ्रॉम मैरो। सेकंड थिंग ये है कि आपको डिवाइड करना है। आई नो 9 days इज टू मच फॉर सर्जरी, बट व्हेन यू हैव 7 8 months इट्स ओके टू गिव 9 days फॉर सर्जरी फॉर कंप्लीटिंग इट। ओके, अब नॉर्मली क्या करना है आपको, जो नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट है एक बिग सब्जेक्ट के बाद में छोटे रखने हैं, ताकि जो रिवीजन कर पाओ आप सर्जरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नेक्स्ट 7 8 days के अंदर। साथ में डर्मा को, साथ में आप जो शॉर्ट सब्जेक्ट है वो भी फिनिश कर पाओ। मैं नॉर्मली यूज करता था कि 40 पेज को डिवाइड कर लेता था पेजेस के हिसाब से, ना कि टॉपिक के हिसाब से। ओके, एंड लास्ट में आप इसकी बीटीआर पढ़ेंगे। यहाँ पे अब जो बीटीआर है हमारे, मतलब आई डोंट रीड बीटीआर, लेकिन अब बीटीआर बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आप यहाँ पे बीटीआर को पुट कर सकते हैं लास्ट वाले दिन, थोड़ा इजीली स्पीड अप करके अपने आप को। ठीक है, इस हिसाब से आपको ये हेल्प मिलेगी। मंथली प्लान से होगा कि यू नो कि यू कैन फिनिश 5 सब्जेक्ट इन मंथ। बाय दिस मंथ, in 4 to 5 months, you can finish all your 20 subject revision of most important topic of almost all subject। तो ये वाला प्लान जो 30 days वाला प्लान है ये बहुत अच्छा है। डिवाइड एंड रूल मैंने बता दिया है आपको कि 80% टू 20% कैसे कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, व्हाट इज द जीटी फ्रिक्वेंसी यू शुड फॉलो। जीटी फ्रिक्वेंसी जो आप ऐप ले रखे हैं उसमें जो जीटी दिया जा रहा है उस जीटी को उसी टाइम पे दे लो, सिंपल। मतलब फर्स्ट डे समवन गिव इज फर्स्ट डे और समवन गिव इज लास्ट डे। जिनसे कंट्रोल नहीं होता है, जिनसे वेट नहीं होता है, वो क्या करते हैं, इसको लास्ट डे देते हैं। तो फर्स्ट डे आइदर और लास्ट डे यू हैव टू गिव जीटी। इन स्टार्टिंग डेज ऑफ मैरो जीटी शायद 30 days पे अपीयर होता है, एंड इन द एंड जीटी शायद हर 50 days पे अपीयर होता है। दैट्स द बेस्ट फ्रिक्वेंसी टू अपीयर इन जीटी, एंड उसको फॉलो करना है। फॉलो के लिए आप किसी भी इंटरव्यू को देख सकते हैं मेरे चैनल पे कि टॉपर्स कैसे फॉलो करते हैं। नॉर्मली मैं तो ऐसा करता था कि जो पूरा जीटी नहीं, होल जीटी नहीं, ऑलमोस्ट 30 40 क्वेश्चन जो मेरे मिस्टेक होते थे उनको कम से कम रिवाइज कर लेता था। और जो लिस्ट बॉटम से जो बी लीस्ट सब्जेक्ट आ रहा है, जो बॉटम सब्जेक्ट आ रहा है मेरा उस जीटी के अंदर, उसको एक बार ढंग से रिवाइज करके नेक्स्ट वाले जीटी के अंदर ढंग से प्रिपेयर करके देता था। ठीक है, दीज आर द थिंग्स आई थिंक इम्पोर्टेंट है। और जैसे निमोनिक वाले पार्ट के लिए मैं बता रहा था आपको कि देखो 20th नोटबुक के अंदर निमोनिक वाला पार्ट अलग से दिया हुआ है। मैंने मेरी 20th नोटबुक के अंदर अलग से, जैसे 20th नोटबुक के अंदर आप ऐसे कर सकते हो, ये 20th नोटबुक का ये कंपाइलेशन है मेरा जो मैंने बनाया हुआ है। ये दिस थिंग यू कैन डू। और या फिर जिस निमोनिक वाला पार्ट मैंने अलग से बना रखा है हेडिंग डाल के निमोनिक, और ये देखिए निमोनिक है। जो मेरी निमोनिक बनाए हुए हैं ये सारे, इसके अंदर बहुत सारे हैं। और नॉर्मली इंपॉर्टेंट टेबल्स जो होती थी वो मैंने ऐसे डाली हुई है अलग से। एज वाइज मैनेजमेंट मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता था, सीटीवीएस का, डीडीएच का, ये एक्स्ट्रा पेनल साइड इफेक्ट मुझे याद नहीं रहते थे। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यू नो इंपॉर्टेंट कीमोथेरेपी कहाँ पे क्या क्या यूज हो रही मुझे याद नहीं रहती थी। तो ये सब आप 20th नोट में डाल सकते हैं इस प्रकार से। आई होप यू लव दिस टॉपिक एंड लव दिस वीडियो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर